السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو کا آغاز کر رہے ہیں محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ شاہ جی پریس کانفرنس شروع ہو چکی ہے، شاہ جی کر کے رہے ہیں آپ؟ سوری نہیں، اصل میں جنید میاں میں یہ پوری دنیا کے ممالک کو پاکستان آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس طرح تو پرندوں کو بلایا جاتا ہے دانہ ڈال کے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ پہنچ گئے ہماری سوچ تک۔ دیکھیے سفارتکاری اسی کا نام ہے، دانہ ڈال کے بلانے کا نام۔ سب سے پہلے تو اپنا سافٹ امیج دکھانا ہے لوگوں کو۔ اچھا یہ جو ہے یہ سافٹ امیج ہے۔ اچھا اچھا، کیا بات، شبی کپور یاد آ گیا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ یہ دیکھیے کیسے کیسے لفظ نکل رہے ہیں ہماری تعریف کے لیے، کہہ رہے ہیں شمی کپور لگ رہے ہیں۔ ویسے بھی جنید میاں آف دا ریکارڈ جی دانا ڈال کے ہی بلانا پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ یورپین یونین کو وادی نیلم کی سیر کی دعوت دی ہے۔ آپ لوگ تو صرف اداکارہ نیلم کو ہی جانتے ہیں۔ وادی نیلم پاکستان کی خوبصورت ترین وادی ہے۔ یعنی شاہ جی کی اس موو کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ شاہ جی اصل میں یورپی یونین کے نمائندوں کو آزاد پہلے جو کشمیر آپ نے کی کہا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس میں شکریہ کا پوز نہیں دیں گے؟ ہم آپ کو شکریہ کہنا چاہتے ہیں۔ نہیں، واقعی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ شاہ جی اصل میں یہ یورپی یونین کے نمائندوں کو آزاد کشمیر کی سیر کروا کر مقبوضہ کشمیر کے ساتھ موازنہ کروانا چاہتے ہیں۔ بڑی زبردست موو ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ شاہ جی آپ نے وادی نیلم میں دعوت دی ہے یورپین یونین کو، ہم صحافیوں کو بھی دعوت دیں، ذرا آپ کی کوریج بھی اچھی ہو جائے گی۔ ویسے بھی بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں، ود فیملی دعوت دیں گے تو ہم بھی وادی نیلم دیکھ لیں گے۔ چھٹیوں میں بچوں کو ان کی نانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور برادر اگر آپ کے بچوں کی نانی کا نام نیلم ہے تو پھر وادی نیلم چلے چلیے۔ حد ہو گئی ہے، 50 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کا پیسہ بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اپنے بچوں نے بھی فرمائش کی تھی وادی نیلم کی، ہم نے صاف جواب دے دیا۔ ہم نے کہا خبردار، ہمارے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم حکومتی خرچے پہ یورپین یونین کو یہاں بلا رہے ہیں خارجہ پالیسی کے تحت۔ ویسے بھی آپ کا کون سا خرچہ ہوتا ہے بچوں کو سیر کروانے کا؟ ایک چھوٹا پنجرا لیں، اس میں بچے ڈالیں، جہاں جائیں پنجرا اٹھا کے ساتھ لے جائیں۔ کاغان لران کی چوٹی پہ جائیں، دروازہ کھولیں، شی کریں، بچے سارے آپ اچھی بلی پریس کانفرنس کو ذاتیات کی طرف لے گئے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو، گوروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وادی نیلم کیا ہے، کہاں ہے، اس کا نام وادی نیلم کیوں ہے۔ ویسے سر کیوں ہے اس کا نام وادی نیلم؟ ارے نیلم ایک پری کا نام تھا۔ اچھا جی، جی ہاں، خیر آپ کا کیا لینا دینا پریوں سے؟ نہیں سر ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں ایک پری کو جانتا ہوں۔ واقعی وہ پری غریب تھی یا آپ ان دنوں امیر تھے؟ سے ملا تھا پیار، کچھ اچھے نصیب تھے۔ بھائی یہ پیٹنا رونا دھونا تو پری کو کرنا چاہیے۔ او ہو شاہ جی، پری میری ڈائریکٹ واقف نہیں ہے، میرا ایک جن واقف ہے، ٹین ایج سے، درینا دوست ہے میرا، بہت کٹھے رہے، وہ اپر پورشن میں رہتا تھا، میں باٹم پورشن میں رہتا تھا۔ کس چیز کے اوپر؟ وہ یہ ایک درخت تھا، اچھا، اس درخت کے اوپر اس جن کا سایہ تھا، اور میں اس درخت کے نیچے لڈو پیٹھیاں والے لگاتا تھا۔ چھٹو جن چھٹو، میری چٹنی بڑی مشہور سی، بچے اتنے لڈو لیندے نہیں سن، بھائی انہیں کہتے پاس تھوڑی چٹنی دے دے، پاس تھوڑی چٹنی دے دے، لڈو بچ جانے، پھر میں گھر لے جانے، وہ بچہ میرے نے پھر چاہ نہ کھا لینے لڈو۔ خدا کا خوف کرے یار، وزیر خارجہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شاہ جی آپ نیلم پری کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ وزیر خارجہ نے دادا ابو نہیں گئے کہ پریاں دیا کہانیاں سنا۔
और ये जिस परी की कहानी सुना रहा हूँ ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ शाहकार है। ये वो परी नहीं जो थिएटर ड्रामे में गाना करती है। बात सिर्फ जुनैद साहब वादी नीलम की नहीं, बात तो ये है कि हम पूरी दुनिया को पाकिस्तान का चेहरा दिखाना चाहते हैं। खूबसूरत चेहरा जो है, ब्यूटीफुल चेहरा, माशाल्लाह। नरम चेहरा, सॉफ्ट चेहरा, चमकता चेहरा, रोशन चेहरा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शाह जी, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। जुनैद साहब, खुदा रहा इस शख्स की सहाफत से मेरी सफारत को बचा लीजिए। यार शाह साहब को तंग ना करें प्लीज। जी हाँ। मेरे दोस्त, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अरे वाह, मैं अपनी सफारत को वहां लेके जाना चाहता हूँ और तुम उसे खींच के रावी के पुल के नीचे ले जा रहे हो। शाह जी, अगर आप हम लोगों को सितारों से अगले जहान में ले जाएंगे तो हम खुले आसमान के नीचे पड़े रात को गिनती किस चीज की किया करेंगे? सितारे तो नहीं होंगे वहां पे। जुनैद, यही तो मैं चाहता हूँ कि अब हमारी कौम सितारे गिनने छोड़ दे, अब सितारों पर कुमंदे डालनी शुरू करे। दाद नहीं दी तुमने खुल के? नहीं शाह जी, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, गिनती पहले दाद दो, बाद में सोचना। शाह जी, किसी चीज की तो गिनती करने दें कौम को। कौम के पास गिनने के लिए डॉलर नहीं है, पैसे नहीं है, माल अस्वाब नहीं है, क्या गिने कौम बैठ के? आगे बरसात आ रही है, छप्पड़ों के किनारे बैठ के डड्डू गिने। और आप जानते हैं कि एक डड्डी कितने बच्चे देती है? हजारों। और शाह जी, डड्डूआं ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्यों? ਨਾ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੈਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੜੋਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। क्या बात, आप डड्डू का रजिस्टर पे नाम लिखते जाया करें जो गिन लेंगे। खुदा का नाम ले, शायद ये इंतहाई संजीदा मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं। खुदा का नाम ले यार। ना डड्डू गिने, कुलों पे जाके गिटकें गिने, रेलगाड़ी में बैठ के साथ दौड़ते हुए दरख्त गिने, टीवी के आगे बैठ के बाबर आजम के चौके छक्के गिने। ओ, बाबर आजम से याद आया, कल हमारा अफगानिस्तान से मैच है। ओ, अफगानिस्तान से याद आया, मैंने अभी जाके वो अफगानिस्तान के सदर पागनी को रुखसत करना है। उनकी जिद है कि जब तक शाह महमूद मुझे सी ऑफ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा। शाह जी के साथ अफगान सदर की मोहब्बत देखें आप। जुनैद, मोहब्बत भी है और एक ताल्लुक भी है। अच्छा, वो क्या? मैंने उनकी ट्रेनिंग की हुई है। अशरफ गनी साहब की ट्रेनिंग की हुई है? नहीं, उनकी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग की हुई है। वो कैसे? भाई, इंजमामुल हक ने उनकी ट्रेनिंग की है। हाँ? इंजमामुल हक मेरे शहर का है। अच्छा। मेरे साथ उसका एक ताल्लुक है, बल्कि यूं कहिए कि इंजमामुल हक की मैंने ट्रेनिंग की हुई है। इंकशाफ है। अगर मैं उसे ये ना समझाता कि खुदा के वास्ते रोटी कम खाया करो तो वो बेहतरीन प्लेयर नहीं बन सकता था। खुदा का नाम ले शाह जी, इंजमामुल हक वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। मगर जुनैद मियां, जितनी वो रोटी खाते थे उतनी रोटी पेट में हो तो खिलाड़ी उठा के रन्स नहीं ले सकता। शाह जी, खुदा के लिए अपनी तारीफें छोड़ें, कोई नेशनल, कोई सीरियस इश्यूज पे बात करें, हमें ब्रीफ करें। देखिए, ये सब जानते हैं, जानबूझ के इस बात पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सब जानते हैं कि मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो चुका है। अच्छा। सिर्फ एक पत्थर है जो रास्ते की रुकावट बना हुआ है। वो क्या? मैं चूंकि वजारत खारजा का मनसब संभाले हुए हूँ, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में मुझे जो बात सुनने को मिल रही है, जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है, वो सिर्फ एक ही है। वो क्या शाह जी? हर मुल्क मुझे ये कह रहा है कि शाह महमूद, तुम्हारे मुल्क के अंदर जो चीनी की बढ़ती हुई कीमत है उसे किसी तरीके से रोको। अच्छा शाह जी, आपको चीनी की कीमत की इसलिए फिक्र है कि उसका जिम्मेदार जहांगीर तरीन साहब को ठहराया जा रहा है।
हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इसे दोबारा उसी सिमत में मत ले जाइए। देखिए, जब मुल्क तरक्की करेगा, जब हर तरफ खुशहाली आएगी, जब हर तरफ पैसा ही पैसा होगा, तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा किस चीज को इस्तेमाल किया जाएगा? मिठाई। ये पहुंचे सही जगह पे। मिठाई। तो मेरे दोस्त, मिठाई रेत बजरी की नहीं बनती, चीनी की बनती है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। आपको इस वजाहत का भी मेरी का पता है कि मेरा सोशल मीडिया पे सिर्फ एक फेसबुक का अकाउंट है और मेरा कोई दूसरा ट्विटर पे अकाउंट नहीं है। उन्होंने कहा जुनैद भाई सिर्फ ऐसे ही बस वक्त गुजारी कर रहे हैं, आपके साथ मजाक कर रहे हैं, यानी उनका मजाक है। तो मैंने आगे से मेरा दिल तो किया कि मैं कह दूं कि मैं आप पर कोई इल्जाम लगा देता हूं और फिर मैं भी तमाशा देखता हूं आपका। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ आएं, एक छोटी सी वजाहत, बल्कि कि वजाहत नहीं कह मजम्मत कहना चाहिए, मजम्मत करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता एक दो रोज़ से एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है और वो है कि मुख्तलिफ एंकर्स की एक ट्वीट है कि वो डॉलर की कीमत के हवाले से लफ्ज़ बलफ्ज़ एक ही है और उसमें बदकिस्मती से मेरा नाम भी शामिल है कि जनाब ये जुनैद सलीम ने भी ये ट्वीट की हुई है। अब मैं कम अज़ कम कुछ 50 मरतबा तो इस शो में जिक्र कर चुका हूँ कि मेरा ट्विटर पे कोई अकाउंट नहीं है, जितनी भी ट्वीट्स हैं सारी की सारी फेक हैं। और मैं अपने जो मेरा एक फेसबुक पेज है उस पर भी मैं कई मरतबा ये वजाहत कर चुका हूँ और कई बार मैंने अपने कमेंट्स में ये वजाहत की है कि मेरा ट्विटर पे कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मतलब ऐसे मेरे दोस्त जो फेसबुक पे भी दोस्त हैं, वैसे ज़ाती ज़िंदगी में भी जानते हैं कि, और इस वजाहत को भी वो कई मरतबा सुन चुके हैं, इस पर कमेंट भी कर चुके हैं कि जुनैद सलीम का कोई ट्विटर पे अकाउंट नहीं है। उन्होंने भी उसका ठट्ठा उड़ाया हुआ, उसका मजाक उड़ाया हुआ। और मैंने जब उनसे राब्ता किया कि यार आपको तो पता है कि आपको इस वजाहत का भी मेरी का पता है कि मेरा सोशल मीडिया पे सिर्फ एक फेसबुक का अकाउंट है और मेरा कोई दूसरा ट्विटर पे अकाउंट नहीं है। उन्होंने कहा जुनैद भाई सिर्फ ऐसे ही बस वक्त गुजारी कर रहे हैं, आपके साथ मजाक कर रहे हैं, यानी उनका मजाक है। तो मैंने आगे से मेरा दिल तो किया कि मैं कह दूं कि मैं आप पर कोई इल्जाम लगा देता हूं और फिर मैं भी तमाशा देखता हूं आपका। नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे बोंगे लोग फिर रहे। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हारे कहने पे मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा नहीं, क्या बंदा कर सकता है? ये तो मुसलसल चल रहा है और बेशुमार ऐसा फेक मामला जो हैं और फेक बातें चल रही होती है और वाकई ऐसे नहीं होना चाहिए। ये भी अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह की पकड़ में आने वाली हरकत। अच्छा भाईजान, ये देखें ना कि हम किन कामों में पड़े हुए हैं और दुनिया किधर जा रही है और किधर देख रही है कि हम ये चीज़ें देख रहे हैं। दूसरी तरफ तुम ये देखो कि कल एक आलमी दिन मनाया गया है जिसका पूरे पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं था कि कल किस चीज़ का आलमी दिन मनाया गया। दिन ये था कि छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबारी यूनिट्स हैं इनका आलमी दिन था। SME, स्मॉल एंड मीडियम साइज जो बिजनेसेस हैं, इनका आलमी दिन मनाया गया। अगर आप गौर करें तो इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है, जो इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, वो यही है कि छोटे कारोबारों को किसी न किसी अंदाज में फ़रोग़ दिया जाए, लोगों को उस तरफ माइल किया जाए, बल्कि जो हालात ऐसे पैदा किए जाए कि छोटे कारोबारों में लोग पैसा इन्वेस्ट करें। हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम कितना लूज़ कर चुके हैं, हम इस हवाले से कितनी तेज़ी के साथ हम खसारे का शिकार हो रहे हैं। पिछले भाईजान 10 बरसों के दौरान हम लोगों ने प्रॉपर्टी के डेड कारोबार में $40 बिलियन, $40 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी की है। यानी वही जो $40 अरब अगर छोटे कारोबारों में या दरमियाने दर्जे के कारोबार में इन्वेस्ट हुआ होता तो इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट जो 20-25 अरब डॉलर के दरमियान कहीं फिर रही है वो $50 अरब को टच कर रही होती। हमारी जो बेरोजगारी की शरह है वो 5% से भी नीचे आ चुकी है। लेकिन हमने वो $40 अरब जो है वो फंसा के, साकत करके, जामद करके रखा हुआ है पिछले 10 वर्षों के दौरान, इसलिए कि कभी किसी ने होश ही नहीं की कि ये छोटे। अब देखो दुनिया भर में ये जो छोटे और दरमियाने दर्जे का कारोबार है ना, ये 70% से
ज्यादा मुलाजमतें देता है लोगों को। 70% से कुल जो ज्यादा मुलाजमतें कुल मुलाजमतों का वो छोटे कारोबार से आता है, और 90% से ज्यादा सरमायाकारी छोटे कारोबारों में होती है। और यार हमारे मैं तो ईमान से यहाँ तक सोचता हूँ, अब पता नहीं ये उलमा ही बता सकते हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये फतवा जारी करवाना चाहिए हुकूमत को कि ये जो जमीन लेकर रख छोड़ना है ये भी जखीरा अंदोजी है। आप ये किसी चीज का अगर जखीरा नहीं कर रहे तो कम से कम अपने सरमाए का तो जखीरा कर रहे हैं। वही सरमाया अगर आपके किसी ऐसे कारोबार में चल रहा हो जिसमें 4 बंदे रोटी खा सके या उनको तनख्वाह मिल जाए, उनको रोटी मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये उससे बेहतर है। आप अपना पैसा ब्लॉक कर देते हैं, जमीन में अंदर दफन कर देते हैं, उससे बहुत सारी बेरोजगारी फैल रही है। यू आर राइट। अब तुम ये देखो कि थाईलैंड एक टिड्डा सा मुल्क है, इतना सा मुल्क है। टिड्डा ना हमें कह दिया करो, हमसे बड़ा तगड़ा है वो। तगड़ा किस तरह बनेगी, यही तो बता रहा हूँ ना कि हुजम में आबादी के लिहाज से वो हमारे मुकाबले पे छोटा सा मुल्क ही है ना, पोटेंशियल के एतबार से भी छोटा सा मुल्क है, लेकिन टिड्डे से गुस्सा ना कर, टिड्डे खाते हैं वो। नहीं, दूसरी तरफ आप ये देखें कि वो आपने जो कहा तगड़ा, वो तगड़ा कैसे बना कि हमारी एक्सपोर्ट है 20-25 अरब डॉलर और उनकी एक्सपोर्ट है 400 अरब डॉलर। अब अंदाजा लगा लो कि हमारे मुकाबले में कितनी बड़ी मईशत है। लेकिन उस 400 अरब डॉलर में से 236 अरब डॉलर जो है वो ये छोटा कारोबार है, जो घरों में मतलब 2-2, 3-3 मुलाजिम हैं जिनके पास, वो ये कारोबार कर रहे हैं और दुनिया पे छाए हुए हैं। हाँ जी यार, ये जो सियालकोट हम कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर शहर है, आप उधर चले जाएं तो आपको बड़ी इंडस्ट्रियां जो हैं वो 100 नजर आएंगी, बाकी 1000 इंडस्ट्री, बल्कि 4-5 हजार इंडस्ट्री जो है वो छोटे छोटे कमरों में लगी। अब ये देखो ना, स्टेट बैंक के अपने अदादोशुमार हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के 32 लाख से ज्यादा यूनिट हैं, 32 लाख से ज्यादा। लेकिन उनकी हालत क्या है कि वो भी अब पैसा निकाल के कारोबार बंद करके अपना पैसा जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। फिर हमारे यहाँ हर मुमकिन तरीके से आप कारोबार शुरू करके देख लें, कोई 10-15 लाख रुपए से कोई कारोबार शुरू करके तो देखें, बहुत सारे पोटेंशियल है पाकिस्तान में, आराम से शुरू कर सकते हैं कारोबार अगर कोई हुकूमत थोड़ा सा हाथ पकड़े। लेकिन आप करके देखें, दूसरे दिन ही आपको 36 किस्म के महकमे आ जाएंगे, आपको कारोबार बंद करवाने पे आपको वो उनको शायद ये ड्यूटी दी गई है कि आपने कारोबार नहीं शुरू। फिर आप कर्जे देखें कि ये जो छोटे कारोबारों को देने वाले बैंक्स और इदारे थे, कर्जे देने वाले, वो तकरीबन बंद हो चुके हैं। वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि जी हमने तो अब कर्जे देने बंद कर दिए। इसमें फख्र की बात नहीं है भाई, आपका काम था कि छोटे कारोबारों को फरोग देते, रिकवरी को भी यकीनी बनाते, लेकिन उनका हाथ पकड़ते, उनकी उंगली पकड़ते, उनको बताते उनको। अब हमारे यहाँ कई ऐसे इदारे हैं जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को फरोग देने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनको फरोग देने के लिए, उन इदारों को फरोग देने के लिए भी मेरा ख्याल कोई किसी ताकत की जरूरत है। सोए हुए। हाँ जी, अब छोटा कारोबार बड़ी तेजी से चलता है। गोगे ने अपने घर छोटा सा कारोबार शुरू किया है। अच्छा। हाँ जी, ये हड्डी में से मेख ना निकले, आप इसके घर पकड़ा जाएं, ये मेख निकाल के आपको हड्डी वापस कर जाएगा, मेख खा जाता है। नहीं तो फिर हड्डी का क्या करते हैं लोग? यार खाली हड्डी तुसी हुण ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ कारोबार है, तुसी सोचो। नहीं, जिसका मतलब है ये हड्डियां खाली करने का कारोबार करते हैं। और भाई जी अब आपकी सोच है, आपने खाली हड्डी का क्या करना, उसका जो कारोबार है वो सिर्फ मेख ही बचती है। नहीं, मेरी बात सुनो, अब सोचने की बात है ना, आइडियाज की बात। अगर यही गोगा हमारा जो है ये अगर कारोबार की नौइयत थोड़ी सी तब्दील कर लेता, और स्टील का वो एक खास चम्मच है जो हमारे गुजरांवाला की इजाद है कि वो हड्डी में से मेख निकालने के काम आता है, वो बनाना शुरू कर देता, हर घर की जरूरत है वो। यार गोगा पुराने येन का आदमी है, कल्चरल आदमी है, ये कहता है भाई जी मशीनरी नाल बरकत खत्म हो जाती है, मैनुअल काम में प्रॉफिट ही कुछ और है। इसीलिए ये गोगा हमारा जो है ये स्टील के बर्तन इस्तेमाल नहीं करता, मिट्टी की हांडियां इस्तेमाल करता है। नहीं, इसकी वजह सकाफत नहीं है भाई जी, स्टील दी हांडी एडी मिलती नहीं जिन्नी कच्ची मिल जाती है। अच्छा, सकाफत नहीं, साइज है। हाँ जी, वैसे ये जो है ना जी हैंडमेड चीजें, उन पे बड़ा यकीन रखता हूँ। जीजी गोगे ने तो जिम बना लिया था मशीनों के बगैर। अच्छा जी। अंदर इन्हें 2-2 ईंटां जोड़तियां। अच्छा। कहना भावें डंड ला लो ते भावें 2-2 ईंटां लाके बह जाओ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। फिर नीवी काम
काम कर लिया कड़े कड़ाए च बैडो ने लग गया फिर मैं क्या मैं नीच को ये नहीं काम करेगी मेरी बहन मैं खुद ही मैंने कहा मैं ओवर टाइम भी लगा लेता हूँ ते अब्बा कहता है कि ओवर टाइम दिया पुतड़ा ओ फैक्ट्री पे बंद कर दे तू ओवर टाइम ला नाज़रीन, माशरे से एक नए गिले के साथ, एक नए शिकवे के साथ आज एक मरतबा फिर हमारी महफिल में मौजूद है हमारा फीका। फीके करो गल्ला तुमसे बातें करने के लिए बुलाया है, फीके। किसके साथ हमारे साथ करो, हमारे व्यूअर्स के साथ करो, लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं। उनके साथ करो, अफसरों के साथ करो। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। मैंने तो 50 दफा कहा कि घर छोटा ले ले ते अगो अम्मा कहती है पहले ही एक कमरे वाला घर ते फिर एदू छोटा ते फिर किसी बड़े मैदान चिड़िया रख लेते हैं। अल्लाह ना करे यार। मालक मकान आगे बदतमीजी करता है मेरी अम्मा दे नाल। मैंने कहा भी है, मैंने कहा मेरा अब्बा आएगा जब फिर आके बात करना। तो कहता अब्बा तेरा उन राती आंदा फैक्ट्री तो मैं बुए के बैठवा कड़ाया दियो मैं वज लेना। पहले ही अम्मा कहती है इधर काट शुरू हो जाती है नाक के ऊपर उड़ है। कहते पहले अम्मा कहती है पहले ये 10% बढ़ांदे हर साल कढ़ाया तो अब कहते हैं नहीं मैंने नहीं मैं बाहर निकलो 18,000 ते नहीं वाड़ा खांदा 28,000 देना है तो निकलो नीचे फिर 10,000 इकट्ठा बढ़ा है। कहते हैं टैक्स बढ़ गए हैं और महंगाई बहुत हो गई है। मैं कहते तुहाडे कल्याण लिए महंगाई हुई यार फीके हमारी नहीं महंगाई हुई। अल्लाह बचाए ना मालक मकाना तो देखो इन्होंने बेचारे ने ज्यादती कर दिया आगे। इन्होंने बेचारा ने बाहर बूहे ते बैल नहीं लवाई। कोई बैल दवे ना तो फीका डर जाता रोला बंदा की हो गया तो तानी में डर के रटा पै जाता है जो भी आंदा कोई कभी मालक मकान साहब आ गए हैं जी। अच्छा कभी मालक साहब आ गए हैं कभी कोई खैर की खबर गरीब बंदे दे घर आंदी हुई नहीं कड़ियाने वाला आ गया बिल लैन दूध वाला आ गया बिल अब हमने दूध हटा दिया बहुत महंगा हो गया। अम्मा कहती है आप ही जो थोड़ा जा चाहिए जाएगा जाके हट्टी तो ले आवांगे। फीके तुम फिक्र ना करो और यार तुम मेरे दोस्त हो तुम मेरी तरफ शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो जाओ तू बड़ा संटोड़ से फ्लैट ले आए एक कमरा तू आडा है एक साडा है सिर्फ इस बात पे जिद करता है कि साडा घर वड्डा है कि साडे पौड़ी के थल्ले भी जगह बनी हुई है। यार वो दिल उसका देखो कितना बड़ा है कि वो फिर भी तुम्हें ऑफर कर रहा है हमारी तरफ शिफ्ट हो जाओ। तो उधर जाके फिर ये उधर रहेंगे या हम रहेंगे। सर जी निशाने की गलती की इन्हें फिक्रा यूज ही करना चाहिए कि शिफ्ट हो जा इन्हें ज्यादा करना चाहिए साढ़े घर सौ जा। यार उसका दिल देखो दिल देखो घर तो उन्होंने है ही नहीं ते नाले फीके ने केड़ा करो रेड टैची रेड के निकलना बाहर फीके कोई पोल्ट्री दी वो काशी से लंदा ते निकल जाता है। दो टड़ंके मारे लोहे के साथ आटे वाली पेटी और 3-4 पाइया और अब्बे का साइकिल पिकअप करा लो सामान इधर नहीं जाना तेरी ना करा लिए फीके बैठ जाओ लड़ाई हो जाएगी बैठ जाओ ना 10 फोर व्हीलर डंगड़ यार आप ही आ जांदा ये ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੇਡ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ यार
ਮੋਟਾ ਆਲੂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨਾਨ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੇਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਗ ਲੁੱਦ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗ ਲੁੱਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਆ कभी बैठ के बात कर लो, बैठ के बात कर लो। वो जो फिर छेड़ते हैं चलो बस करो फीके, कोई बात नहीं। कढ़ाया वुद्धा दो कढ़ाया वुद्धा दो कढ़ाया वुद्धा दो फीके, अगर महंगाई बढ़ी है तो सबके लिए बढ़ी है ना, तो मालिक मकान ने तो किराया बढ़ाना है। यार हम पहले भी अपने प्रोग्राम में ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जो मालिक मकान है या जिनको अल्लाह ताला ने साहिब सरवत बनाया हुआ है वो कम से कम इस फाइनेंशियल क्राइसिस में इतना तो इशार करें, इतनी कुर्बानी तो करें कि कम से कम जो फीके जैसे फैमिलीज हैं जो बेचारे 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, उनके लिए किराया चले कम नहीं कर सकते तो साल 2 साल के लिए बढ़ाए ना। बिल्कुल। अब आई है तुम्हें समझ वो अलहदा बात कर रहे हैं, मैं अलहदा बात कर रहा हूँ। बच्चों के ड्रामों में ये कायदे आजम का रोल करता है महंगाई का गरीब आदमी बेचारा कल ही मरे सारी चीजें महंगी हो गई हैं और ऊपर से मालिक साहब कहते हैं कि फालतू बंदे कड्डो फैक्ट्री चो कहते ने मेरा काम ही नहीं चलता तो मैं क्या करिया फिर अम्मा कहती है कि चलो फिर नन्नी भी काम कर लिया करे कढ़ाई च मैं रोने लग गया हूँ फिर मैं क्या मैं नीच को ये नहीं काम करेगी मेरी बहन मैं खुद ही मैंने कहा मैं ओवर टाइम भी लगा लेता हूँ ते अब्बा कहता है कि ओवर टाइम दिया पुतड़ा ओ फैक्ट्री पे बंद कर दे तो तू ओवर टाइम ला कभी अम्मा कहना शुरू हो जाती है कि मैं भी काम कर लेनी मैं कहा मां तू बीमार हुई फिर कह दिया ले का पुतड़ घर भी ते चलाना है ना तो इतनी महंगाई फिर हमारे गाड़ी आनी है गुजारा होना भी अब तो मुश्किल हो गया हुआ है बिजली का बिल भी पिछली दफा भी 12,000 आ गया था ते अब तो कहते हैं कि बिजली कटा छो अच्छा। अम्मा कहती है कि पागल हो गया अब्बा कहता क्यों तू केड़ा नावल लिखन डई हुई कटा छट दफा कर बिल 12,000 रुपया कौन देगा जे अगली बारी भी आ गया तो जो बिल दे लो तो कढ़ाया किथों दियो कढ़ाया दे दियो ते रोटी किथों खाओ रोटी खा लो ते मालिक मकान करो बाढ़ कड्डे एक बंदा कोई हो तो बंदा उससे मथा लगा दिए सारे ही गरीब के पीछे पै गए जाते हैं इस तरह की नहीं कोई गवर्नमेंट अमीर बंदियों नु लाला गड्डियां तो जेड़ा बेचारा गरीब है वो पहले बेचारा खज्जल हो रहा तो उसको होड़ खज्जल करो चलो जी वाह जी वाह बड़ा वधिया हो गया वैसे फीके अब्बा तेरा सही कहंदा कटा दियो बिजली तुसी केड़ा घर च माइक्रोवेव रखया है यार ये क्या बात हुई गरीब आदमी ने पंखा तो चलाना है ना लाइट तो चलानी है ना सही बात है बिजली के साथ कोई माइबड़ो केक चलता है सिर्फ पंखा नहीं चलाना होता फीके बिजली भावे ना घटा लेकिन माइक्रोवेव का सही ना दस दे क्यों तेरा बड़ा मुंडा लगता है माइक्रोवेव इसलिए भी बिजली नहीं लगवाई हुई पंखा लगवाया हुआ है अच्छा थले लम्मा पै जाते फूक मार जाते पंखा आधा घंटा चलता बस करो यार नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ में वक्फा ना करो पंखा चल तो मेरे येन में आया कि ये भी लाजमन अपने दोस्त बहन भाइयों से अपने बच्चों से शेयर करना चाहिए कि खुदा के वास्ते मजाक जो है ना जी उसकी एक हद होती है हम चूंकि सारी जिंदगी ये मजाक का काम करते रहे हैं हमारा तो ये प्रोफेशन है तो इस हवाले से मैं बड़ी ही माजरत के साथ ये अर्ज करूंगा कि जान के साथ खेलना तो बड़ी दूर की बात
میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہے بھی وہ جی جس کو کیا جائے وہ بھی اس کا مزہ ہے۔ مزہ دے اچھا جی، یہ کل پرسوں مجھے اپنے جو تھیلا صاحب ہیں انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی کہ کوئی دوست نہر میں نہانے گئے ہوئے تھے، اچھا تو مذاق میں دوستوں نے ایک دوست کو جسے تیرنا نہیں آتا تھا نہر میں کھینچ لیا، پھینک لیا نہر میں، تو وہ بیچارہ ان کے سامنے گوتے کھا کے تو مر گیا، اسے اسپتال بھی لے کے گئے مگر وہ فوت ہو چکا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بھی لازماً اپنے دوست بہن بھائیوں سے اپنے بچوں سے شیئر کرنا چاہیے کہ خدا کے واسطے مذاق جو ہے نا جی اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم چونکہ ساری زندگی یہ مذاق کا کام کرتے رہے ہیں، ہمارا تو یہ پروفیشن ہے، تو اس حوالے سے میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جان کے ساتھ کھیلنا تو بڑی دور کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہے بھی وہ جس کو کیا جائے وہ بھی اس کا مزہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جس سے مذاق کر رہے ہیں یا جس کی وجہ سے آپ مذاق کریٹ کر رہے ہیں اس کو غصہ چڑھ جائے وہ ریئیکٹ دی بجائے اٹا مارن لگ پڑے یا اللہ نہ کرے اس کی جان چلی جائے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ۔ چونکہ مذاق جب دوستوں میں شروع ہوتا ہے نا جی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس وقت پوئے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب اس وقت احتیاط کسی کے ذہن میں ہوتی نہیں ہے، مگر خدا واسطے کسی ایک کے ذہن میں بھی اگر آئے اور آتا ہے، کسی ایک آدھ کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ گل خطرناک ہے، فوری طور پہ اس کو انیشیٹو لینا چاہیے اس شخص کو اور روکنا چاہیے دوسرے دوستوں کو کہ نہ کر شہزادیہ، نہ کر میرے بھائی، اس سے جان چلی جائے۔ اس طرح کی اور بے شمار مثالیں واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ لاہور شہر میں کوئی بچہ لڑکا کوئی اپنے محلے میں بھوت بن کے ڈرا رہا تھا، تو ایک بندے کو اس نے اسی طرح ڈرایا، وہ کول پستول سی، ہاں اس نے آگے سے فائر کر دیا تھا، اس نے تو اپنی طرف سے بھوت مارا نا، ان کی پتہ ان بچوں مذاق کر رہا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے مذاق جو ہے وہ اس کو اس حد سے آگے نہ گزرنے دیں جہاں سے خطرہ شروع ہو جائے۔ ایک اور مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، وہ اپنا دریائے نیلم میں اسی طرح دوستوں نے دریا عبور کرنے کا کو شرط لگا کے مذاق میں تو جمپ مار دیے، اس میں بھی ایک لڑکا ڈوب گیا تھا۔ اسی طرح رینالہ خرد کا ایک واقعہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، کسی نے مذاق میں اپنے کسی دوست کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑا خطرناک، تو وہ ہسپتال میں ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے، وہ بیچارہ نکل کے دوڑا ہے، اس تیزی میں راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مذاق کرنا بڑی بری بات ہے، کسی کو ہوٹ کرنا، مذاق کا اینڈ لڑائی ہوتی ہے، وہ 2 دن بعد ہو، 3 مہینے بعد ہو، سال بعد ہو، لڑائی ہوتی ہے۔ ہاں جی، کوئی ایسا دکھتا ہوا مذاق کسی سے کر دیں جو اس کے دل میں رہ جائے تو ساری زندگی نہیں ہو جان چھڑ گا۔ مزاح اور تضحیک میں فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، سیدھی بات ہے۔ ہاں جی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اٹیچ کروں گا کہ آپ یہ جو آج کل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں یا اسمبلی کے اجلاس دیکھتے ہیں یا دوسرے ہم ٹاک شوز دیکھتے ہیں، انتہائی صد احترام کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے پولیٹیشنز کو، اپنے بڑے بڑے جو مدبر لوگ ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، اپنی عزت بناتے ہیں اور اپنے ملک کی شان سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ان کو اپنی اسمبلی میں اپنے ایوانوں میں بھیجتے ہیں چن کے۔ خدا کے واسطے گفتگو کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے، ایک دوسرے میں سے نقص نکالتے ہوئے، اللہ واسطے لفظ اچھے استعمال کریں، خدا واسطے اچھے لفظ استعمال کریں۔ آپ کو آپ کے سارے پاکستان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، اب تو ہر گھر میں چینل ہی صرف نیوز لگا ہوتا ہے، آپ کو بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو مبادہ آپ کے گفتگو سے کسی بچے کی بھی گفتگو خراب ہو جائے، زبان خراب ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے۔ اور اخلاق کتنا اہم ہے یہ تو آپ اسی سے جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا پہ آنے کا مقصد ہی ایک کہا ہے، حسن اخلاق کی تکمیل، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ نہ ہم نماز، یہ بڑے نمازی لوگ جو ہیں نا وہ بڑی بری گفتگو کرنی شروع ہو گئے ہوئے ہیں،
बड़े अच्छे नेक लोग जो और ज़कात बड़ी टका के देते हैं, हज भी उन्होंने 6-7 किए होते हैं, बुए के आगे उनके अलहाज लिखा होता है। हाँ जी, रोजे पूरे रखते हैं, हाँ जी। मगर वो ये भूल जाते हैं कि इन सारी चीजों का भी जिक्र है। हाँ जी। मगर जो एक बात है, हुस्न इखलाक की तकमील के लिए आए हैं सरकार, उन्होंने खुद फरमाया है ये फिर सबसे अहम है। इन सारी इस्लाम के रुकन जो हैं पांचों के पांचों, उनसे भी अहम फिर इखलाक है। खुदा के वास्ते बड़ी मोहतात जिंदगी गुजारें। हमें छोटियां छोटियां तो जिंदगियां हैं। हम अपने एक्टरों में देखते हैं इतने प्यारे हमारे दोस्त पता नहीं किधर गए हैं, बड़े खिलखिला के जिंदगी गुजारने वाले, भजने नसने वाले, मौजे करने वाले। इसी तरह आप जब देखते हैं सियासत में, किधर गया जहांगीर बदर साहब, कितना प्यारा इंसान था, चले गए। किधर गए जुनेजो साहब, चले गए। बेशुमार ऐसे, फौजिया वहाब कितना प्यारा बोलने वाली और कितनी खूबसूरत इखलाक की खातून। मुझे याद है आज तक वो पीपल्स पार्टी में थी और नून लीग के खिलाफ गुफ्तगू हो रही थी, तो उस प्रेस टॉक में किसी शख्स ने शहबाज शरीफ को बाकायदा कोई गाली वाली छोटी मोटी दे दी। तो मुझे आज तक फौजिया वहाब के एक्सप्रेशन याद है, जो कुदरती उनके फेस पर रिएक्ट आया था कि ये क्या कह दिया तुमने, ये नहीं था कहना। ऐसी प्यारी खातून, उनके अंदर से इखलाक निकल के उनके चेहरे पे आ गया। तो इस तरह के लोग चले गए हुए। खुदा के वास्ते प्यार से मोहब्बत से जिंदगी गुजारें और बड़े ही सोच समझ के गुफ्तगू करें। बड़े छोटे का अदब। खवातीन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी बहनें सारी ही जितनी भी गई हैं बड़ी पढ़ी लिखी हैं, मैं छोटियां छोटियां क्लैपां लैन वास्ते और अपने लीडरां नूं खुश करने वास्ते एहो जिहा फजूल लफ्ज बोल देती हैं, इस तरह का फजूल लफ्ज बोल देती हैं कि बंदा शर्मिंदगी से बच्चों को कहता है जाओ मेरा पुत्र छुट्टियां ने, तेरा ये मतलब नहीं कि टीवी देखी जाओ, उधर जाके पर को फलूदा शलूदा खाओ, चलो शाबाश। यानी अगर अब्बा कार्टून को आप पे अहमियत दे रहा है तो इसका मतलब है कि गड़बड़ चौकी। इस वास्ते प्लीज कम अज कम और कुछ नहीं तो कार्टून से तो ज्यादा अपनी इज्जत बनाए ना, ताकि अब्बा ये ना कहे कि कार्टून देख रहे। ये था आज का अस्पताल और आज की छोटी सी बात ये कि जिस तरह बंद कमरे में छोटे छोटे सुराख सूरज के तलू होने का पता देते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी छोटी छोटी खूबियां हमारी शख्सियत को उजागर करती हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।